So, without any further delay, let's start. Hygiene and sanitation, personal and food hygiene. Maintaining hygiene and sanitation is necessary for many reasons: personal, social, health, psychological, or simply as a way of life. Keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development and spread of infections, illness, and bad odors. So, the interviewer can ask you a question from the first line here itself, that why is it necessary or why is it important to maintain hygiene and sanitation? So you would answer, so it is necessary to maintain hygiene and sanitation for many reasons: for personal, social, health, psychological, or simply as a way of life. It helps us to prevent the development and spread of infections and illness and bad odors. That's much. Personal and food hygiene are necessary to preserve and improve the health of the individual and of the community as a whole. ये फिलअप के लिए आ सकता है कि पर्सनल एंड फूड हाइजीन आर नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ dash and dash of as a whole. Its study is aimed at making the kids aware of many preventable health hazards and to enable them to look after themselves and their community most efficiently. It seeks to develop in them the concepts of healthy living. Personal hygiene involves all aspects of the health of an individual. Dash involves all aspects of the health of an individual. तो पहले के पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया कि हाइजीन के बारे में एक जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन. आपने देखा कि सिर्फ पहले पैराग्राफ से ही हमने 2-3 क्वेश्चंस या इंटरव्यू के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए निकाले हैं. इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एड ऑन नहीं है, बट आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ी रटनी पड़ेंगी. मैंने ऐसे कि रटनी पड़ेंगी, तो साथ में रटने के साथ साथ समझना भी है. पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर फोकस बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन किया जाता है हर चीज़ के लिए. तो मैं कहीं कहीं पर जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे याद रखना है इन पॉइंट्स को, कुछ डायग्राम के थ्रू. या हाइजीन. Personal hygiene involves those practices performed by an individual to care for one's bodily health and well-being through cleanliness. Personal hygiene पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी पहली डेफिनेशन आप ये लिखेंगे. Maintenance of personal hygiene is very important in preventing diseases. It deals with the practices that helps in the maintenance and promotion of a person's health. Personal hygiene habits such as washing hands, brushing teeth, keep bacteria, viruses, and illness at bay. There are mental and physical benefits. Practicing good body hygiene helps you to feel good about yourself. तो यहाँ बताते हैं कि अपनी पर्सनल बॉडी हाइजीन के क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए, हमारी क्लीनलीनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज कोई डिसीज़ या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमें अगर हम क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं रखेंगे. तो अब क्लीनलीनेस कुछ बेसिक कैसे हम क्लीनलीनेस मेंटेन रखते हैं पर्सनल अपनी बॉडी की, बाय वॉशिंग आवर हैंड्स, बाय ब्रशिंग टिथ, ताकि बैक्टीरियाज एंड ऑल दूर रहें हमसे. By bathing. Okay. Main components of personal hygiene are, ये क्वेश्चन आ सकता है, what is personal hygiene? What are its main components? So main components of personal hygiene are sleep, bathing, brushing your teeth and keeping fingers and toenails trimmed. ये 4 आपको मेन पॉइंट्स ऐसे याद रखना है. इनको आप बोल्ड में लिख के या कैपिटल में लिख के देन उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्लीप, व्हाट इज स्लीप. Sleep is the periodical rest of both body and mind and it is extremely essential for a healthy body. एक यहाँ से फिलअप बन सकते हैं. Sleep means the periodical rest of both dash and dash. So body and mind. The duration of sleep one requires varies with the individual age. Average requirement is about 7 to 8 hours a day. तो sleep क्या है? एक periodical rest है हमारे बॉडी का भी और माइंड का भी, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, एक हेल्दी रहने के लिए. अगर आपने देखा होगा कि जो लोग इनफ स्लीप नहीं लेते हैं, अगर आप सिर्फ 1 या 2 घंटे सोएंगे दिन भर में 24 आवर्स में, तो आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम नहीं करेगी. द ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्स इंडिविजुअल एज, वो डिफर करता है इंडिविजुअल एज के साथ कितनी ज़रूरत है. अगर आपने देखा होगा तो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो बहुत आवर्स तक सोते हैं, एंड जो एक एवरेज इंसान होता है वो 7 to 8 आवर्स इन अ डे सोता है. उनकी रिक्वायरमेंट होती है एवरेज रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज बाथिंग. बाथिंग इज कीपिंग द स्किन क्लीन एंड इन हेल्दी कंडीशन. इट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. वॉश योर बॉडी रेगुलरली. योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली शेडिंग स्किन. दैट स्किन नीड्स टू कम ऑफ, अदरवाइज इट विल टेक इट एंड कॉज इलनेस. तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बाथिंग के बारे में. देन ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्रशिंग मिनिमाइजेज द एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन माउथ विच कैन कॉज टूथ डिके एंड गम डिसीजेस. यहाँ से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वाई इज़ ब्रशिंग द टीथ नेसेसरी.
what will happen if you won't brush the teeth twice a day? So you would answer, so it can cause tooth decay and many gum diseases. यहाँ पे भी कैसी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि what would happen if you won't keep your finger and toenails trimmed? So you would say, sir, it can cause problems such as hangnails and infected nail beds. ये कुछ और डिसीजेस है जो हो सकती है अगर आप अपने फिंगर एंड टो नेल्स के ट्रिम नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो बराबर. फीट दैट आर क्लीन एंड ड्राई आर लेस लाइकली टू कॉन्टैक्ट एथलीट्स फीट. अब देखिए यहाँ पे अगर आपको पता है कि एथलीट्स फुट को और क्या बोलते हैं, टीनिया पेडिस, तो ये एक इम्प्रेशन डालता है आगे वाले इंटरव्यूअर पे या पेपर जो चेक कर रहा है उस पर कि आपको भीड़ से अलग कुछ अलग नॉलेज पता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है हर चीज़ पे, तो इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि रटने का काम ये सब चीज़ें तो हर कोई कर रहा है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर जगह किसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा मैटर करते हैं एक पॉइंट के बाद सिलेक्शन में. व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं आता है बट गो थ्रू कर लेना इस PDF इस फोटो की. देन ये पर्सनल हाइजीन मिस्टेक्स जो हम जनरली करते हैं, एक बार देख लेना उसको प्लीज़. फूड हाइजीन इज़ द कंडीशन एंड मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ फूड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन. फूड कैन बी कंटामिनेटेड एनी पॉइंट ड्यूरिंग स्लॉटरिंग और हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, storage, distribution, transportation and preparation. Lack of adequate food hygiene can lead to foodborne diseases and death of consumer. तो question can come, what is food hygiene? You should know. उसकी definition क्या है, पूरा पैराग्राफ ही याद रख लेना. एंड अगर आप प्रॉपर फूड में हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाएगा बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज एंड विच विल फर्दर कॉज फूडबॉर्न डिसीजेस या फूड पॉइजनिंग हो सकता है, or in some cases death of consumer. Now this box is important. यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं how to maintain good food hygiene. So by protecting food from risk of contamination, by preventing any present bacteria from multiplying, destroying any harmful bacteria, and by discarding unfit or contaminated food. Next, what are the 5 keys to safer food? Keep clean, separate raw and cooked, cook thoroughly, keep food at safe temperature and use safe water and raw materials. Easy है ये 5 points, बहुत easily याद हो जाएंगे आपको. Important components of food hygiene. Food is a potential source of infection and is liable to contamination by microorganisms at any point during its journey from producer to consumer. Prevention of contamination of food has to be observed from producing to handling, distribution and serving. तो फूड जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, जिससे वो बहुत इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कंटामिनेट हो सकता है एट एनी पॉइंट, प्रोडक्शन से लेके या हैंडलिंग में किसी मोमेंट पे या डिस्ट्रीब्यूशन में या सर्व करते टाइम रिस्क बहुत है कि फूड जो है वो किसी भी मोमेंट पे कंटामिनेट हो सकता है. तो फूड हाइजीन मेंटेन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हाइजीन. पहला है मिल्क हाइजीन. Milk is an efficient vehicle for many disease organism. Contamination of milk may be through infected animal, human handler or environmental factors. Following aspects should be ensured to obtain clean and safe milk. Animal and its surroundings should be healthy and clean. The animal should be properly washed before milking. पहला point ये याद रखना है. Next, milk handler should be free from any communicable diseases. बहुत easy points दिए यहाँ पे. मिल्क वेसल क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज एंड केप्ट कवर्ड, एंड वाटर सप्लाई जो होता है उसमें मस्ट बी सेफ. पैस्चराइजेशन, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, पैस्चराइजेशन क्या है. एंड पैस्चराइजेशन इज द हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच टेम्परेचर एंड फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम एज आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय एनी पैथोजन विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू. पैस्चराइजेशन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है एट सच टेम्परेचर एंड इतने टाइम के लिए कि उसके अंदर जो भी पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बट उसका जो न्यूट्रिशन है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो. ओके, एंड इट डज नॉट अल्टर द टेस्ट. टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस एंड टाइम 1 to 2 seconds. यहाँ पे पैस्चराइजेशन इस प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया था?
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लुइस पास्चर, जिन्होंने इस प्रोसेस को इन्वेंट किया है। एंड विकीपीडिया पे एक डिफरेंस है यहाँ पे थोड़ा, कि मैंने बाकी वेबसाइट्स पर भी देखा तो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम बताया है, एंड यहाँ प्रेसी में 130 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आप एक बार अपने जो भी सीओ सर है या एओ जो भी मैडम आपको पढ़ा रहे हैं उनसे एक बार ये चीज़ कन्फ्रंट कर लेना, ताकि उनको भी पता रहे। नाउ मीट हाइजीन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मीट आर, it should neither pink nor deep purple, should be firm and elastic to touch, excess of fluid indicates edema, it should has an agreeable odor and reaction should be acidic. ये 5 पॉइंट है, it can be easily remembered. Next, fish hygiene. Fish for human consumption should be fresh. In fresh fish the gills are bright red, eyes clear and prominent. Consumption of contaminated fish may give rise to fish poisoning. Egg hygiene, majority of freshly laid eggs are sterile inside. Egg shell may be contaminated by any fecal matter from the hen. तो eggs जो होते हैं वो freshly laid eggs are sterile inside, मतलब जो inside होता है egg के that is free from any microorganism or any contamination, but जो egg का shell होता है उसके ऊपर कुछ hen के fecal matter का contamination हो सकता है. That's why everyone should watch the eggs properly before cooking. Fruits and vegetable hygiene. Fruits and vegetable hygiene are an important source for the spread of pathogenic organisms, protozoa and helminthes. ये kind of microorganisms हैं. Fruits and vegetables consumed raw must be washed before eating. Basic जो हम सबको पता है. Then hygiene of eating places. ये कुछ important point है जिनको याद रखना पड़ेगा. Eating places should not be located near filthy places. कोई ख़राब सी जगह पे ईटिंग प्लेस लोकेटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई ड्रेन के पास में या कीचड़ वगैरह हो जहाँ, या कोई तबेला या सोकेज पिट्स वगैरह के पास में ईटिंग प्लेसेस नहीं होनी चाहिए. फ्लोर शुड बी इजी टू क्लीन एंड प्रेफरेबली टाइल्ड. रूम्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी वेंटिलेटेड, इंसेक्ट एंड रैट प्रूफ एंड शुड हैव एडिक्वेट लाइटिंग. पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स शुड बी केप्ट सेपरेटली, मतलब जो भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं जल्दी एंड जो बहुत समय तक चलती हैं उनको अलग अलग रखना चाहिए. Furniture should be strong and easy to clean. Diffuse should be collected in covered bins and removed regularly. Water supply should be independent, adequate and safe. Proper place for cleaning of utensils should be provided. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, आप इसमें से कोई पॉइंट स्किप नहीं कर सकते हैं. 10 पॉइंट्स दिए तो 10 याद रखने पड़ेंगे, 12 दिए तो 12 याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट, हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स. अब जो फूड हैंडल करते हैं, जो फूड सर्व करते हैं, उनको किस किस हाइजीन का ध्यान में रखना पड़ता है. उनका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए जब उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप. रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए उनको प्रॉपर हाइजीन के बारे में एजुकेट करना चाहिए टाइम टू टाइम. एंड दे शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड अबाउट हैंड वॉशिंग, ट्रिमिंग ऑफ नेल्स, कवरिंग ऑफ हेयर, वियरिंग ऑफ ओवरऑल्स एंड कवरिंग माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग ड्यूरिंग कुकिंग. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं जो इवन 4th 5th स्टैंडर्ड में भी हमको पढ़ाई जाती थी. नेक्स्ट इज सैनिटेशन. सैनिटेशन की डेफिनेशन क्या है? सैनिटेशन मीन्स कीपिंग द लिविंग एरिया एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन. इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिफ्यूज. वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही रिफ्यूज बोलते हैं, जस्ट अनदर नेम. The some types of waste products are human excreta that involves feces and urine, stable litter that involves horses and cow dung. यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउस होल्ड सलेज जो है वो कौन से टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है या कौन सा रिफ्यूज़ में आता है, किस टाइप के रिफ्यूज़ में आता है. एंड जो हाउस होल्ड म्यूनसिपैलिटी एग्रीकल्चर वेस्ट है वो कौन से टाइप में आता है. हॉर्सेस एंड काउ डंग कौन से टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स में आता है. तो ये आपको याद रखना है अच्छे से. डोंट टेक इट लाइटली. Dead animals carcasses and offal of slaughtered animals. सोर्सेज ऑफ रिफ्यूज़. अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके अलग अलग सोर्सेज होते हैं. स्ट्रीट रिफ्यूज़, मार्केट रिफ्यूज़, स्टेबल लिटर, इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़, डोमेस्टिक रिफ्यूज़. ये 5 टाइप्स हैं. तो स्ट्रीट रिफ्यूज़ मतलब जो भी स्ट्रीट को क्लीन करके जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या रिफ्यूज़ इकट्ठा हो रहा है, दैट इज स्ट्रीट रिफ्यूज़. एग्जाम्पल, लीव, स्ट्रॉ, पेपर. क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिफ्यूज़, एंड फिर आपको ये 5 लिखने पड़ेंगे एक्सप्लेन करके विद एग्जाम्पल्स. और अदरवाइज आपको फिलअप्स के लिए आ सकता है कि कौन से टाइप का रिफ्यूज़ है ये. देन मार्केट रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट इज कॉल्ड मार्केट रिफ्यूज़.
Example, spoiled vegetables and animal matter. Stable litter contains animal dropping and leftover animal feeds. Industrial refuse जो होते हैं, it contains toxic and chemical waste like chemical solvents, paints, sandpapers, industrial byproducts, metal and radioactive waste. Then domestic refuse जो हमारे घर से रोज़ निकलता है, consist of ash, rubbish and garbage. ये एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं कि ash, rubbish and garbage किस में आते हैं, तो डोमेस्टिक रिफ्यूज़. नाउ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और रिफ्यूज़. इसमें कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ रिफ्यूज़ पूछोगे तो ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ के अलग पॉइंट्स हैं. यहाँ पे डिस्पोजल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाले पॉइंट्स यहाँ लिखोगे. डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ के अलग नीचे में पॉइंट्स है, वो लिखना है. ये डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के हेडिंग के नीचे ये सब हेडिंग है, कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ रिफ्यूज़. तो हाउसहोल्ड रिफ्यूज़, covered galvanized iron bins are placed on brick cemented platform at convenient distance from the houses. These should be used for dumping household refuse. This refuse is then collected in covered wheelbarrows or municipal vans to prevent blowing out the air. तो कई बार आपने रोड पे देखा होगा से सीमेंटेड प्लेटफॉर्म पे कवर्ड आयरन के बिन्स रखे होते हैं कचरा डालने के लिए. सो दैट इज हाउसहोल्ड रिफ्यूज. एक कलेक्शन का एक प्रोसेस है वो. Then special refuse, it is from stables and cow sheds collected in carts. कि कहाँ कहाँ से जो कचरा है या जो भी रिफ्यूज़ है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ से. तो हमारे हाउस होल्ड से कलेक्ट किया जाता है रिफ्यूज़. स्पेशल रिफ्यूज़ जो होता है वो स्टेबल्स एंड काउ शेड से कलेक्ट किया जाता है. देन स्ट्रीट रिफ्यूज़ जो कवर्ड डस्टबिन्स में होता है स्ट्रीट के साइड में, जो अर्ली मॉर्निंग वैन्स में लेकर जाते हैं, कलेक्ट करते हैं. देन एक बार कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज़ हो गया है, हमने देखा टाइप्स ऑफ रिफ्यूज़, सोर्सेस ऑफ रिफ्यूज़, कहाँ से वो रिफ्यूज़ आ रहा है, फिर उसको कलेक्ट कैसे कर रहे हैं. अब उसके बाद में कलेक्ट होने के बाद में उस रिफ्यूज़ को डिस्पोज कैसे कर रहे हैं, डिस्पोजल कैसे होता है रिफ्यूज़ का. तो उसके लिए कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हैं. फिलिंग, कंट्रोल टिपिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर, बरियल एंड सॉर्टिंग. अब आप बोलोगे मैम इतने सारे पॉइंट्स हम कैसे याद रखेंगे, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, FCBC SIM. ओके, FCBC SIM. F से फिलिंग, C से कंट्रोल टिपिंग, B से बरियल, C से कंपोस्टिंग, S से सॉर्टिंग, I से इंसिनरेशन एंड M से मैन्योर. तो ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है बट ये याद रह जाएगा आराम से कि डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ कैसे करना है. FCBC SIM, SIM SIM. आप कोई और ट्रिक से भी याद रख सकते हो. So now the first method of disposal of refuse is filling. In this method, the refuse is generally utilized in filling up pits, unsanitary tanks, or in reclaiming low land. The area selected should be at least 100 to 150 feet away from any habitation. No refuse should be left uncovered for more than 72 hours. तो फिलिंग जो होती है आपने बहुत जगह देखी भी होगी कि एक ओपन लैंड होती है जिसपे बहुत सारा रिफ्यूज़ जो है या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो वो ऐसे ही डाल दिए जाते हैं. फिलिंग जो मेथड है आप उसकी कुछ ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं लैंडफिल्स की, कि कैसे ओपन लैंड पे बहुत सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो डाल दिया जाता है. एंड ये जो लैंडफिल होती है वो कभी भी बहुत हैबिटेशन जो भी है उससे दूर होनी चाहिए. जो लैंड कोई काम की नहीं है उसको जनरली लैंडफिल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. किसी एग्रीकल्चरेबल लैंड को नहीं कन्वर्ट करेंगे. नेक्स्ट इज कंट्रोल टिपिंग. कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल्स. कंट्रोल टिपिंग का दूसरा नाम है सैनिटरी लैंडफिल्स. इसको मार्क करके रखना, ये कई बार पूछते भी हैं. इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल वेयर सुटेबल लैंड इज अवेलेबल. केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड फिजिकल, ये चार्जेस नहीं है, ये चेंजेस है, तो ये कर लेना. केमिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस अकर इन बरीड रिफ्यूज. तो एक कंट्रोल टिपिंग जो है वो एक काइंड ऑफ फिलिंग की मेथड ही है, बस वो सैनिटरी लैंडफिल्स है. नेक्स्ट इज इंसिनरेशन. हॉस्पिटल रिफ्यूज विच इज़ पर्टिकुलरली डेंजरस इज बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन. तो एक इंसिनरेशन की डेफिनेशन है, इंसिनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग हैजार्डस मटेरियल्स at temperature high enough to destroy contaminants. Incineration is conducted in an incinerator. तो इंसिनरेशन का मतलब ये है कि बर्निंग होती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हॉस्पिटल से आते हैं वो कंटामिनेटेड होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें होती है
जो आप इजीली कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हो, लैंडफिल्स या कहीं भी ऐसी ओपनली, उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना पड़ता है। जो भी हॉस्पिटल से भी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको एक मेथड है इंसिनरेशन, जिसके थ्रू उसको बर्न किया जाता है इंसिनरेटर्स में। आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये जो इंसिनरेशन की प्रोसेस है, इसमें कैसे ये इंसिनरेटर्स है उनमें बर्निंग हो रही है एंड वो फ्यूम्स बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज इन नाइट सॉइल और स्लज। नाइट सॉइल और स्लज का मतलब है इन सिंपल वर्ड्स मिट्टी, कि जो भी रिफ्यूज़ है उसको मिट्टी में कंबाइन करके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये कुछ फोटोज़ है कंपोस्टिंग की, आप देख सकते हो इसमें कैसे मिट्टी के साथ में और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको मिक्स किया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैन्योर पिट्स। द गार्बेज, कैटल डंग, स्ट्रॉ एंड लीव्स शुड बी डम्प्ड इनटू मैन्योर पिट्स एंड कवर्ड विथ अर्थ आफ्टर ईच डे डंपिंग। तो मैन्योर पिट्स में जो भी गार्बेज होता है, घर का कचरा या फिर कैटल डंग या स्ट्रॉ लीव्स वगैरह जो भी है, बायोडिग्रेडेबल जो भी है, उसको डंप किया जाता है। एंड जनरली इसमें कैटल डंग अच्छा खासा होता है क्योंकि उससे मैन्योर जल्दी बनता है। तो उसको एक पिट में डाल के उसको कवर कर देते हैं मिट्टी से, एंड दैट इज कॉल्ड मैन्योर पिट्स। आप हर बार उसमें कचरा डालते हैं, उस पर हर बार मिट्टी डालते हैं इन लेयर्स। देन इज बरियल। This method is suitable for small camps. A trench 1 to 5 meter wide and 2 meter deep is excavated. When the level in the trench is 40 centimeter from the ground, the trench is filled with the earth and composted. तो ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिमिलर हैं मेथड्स, बरियल एंड मैन्योर पिट्स, कंपोस्टिंग। ये स्मॉल कैंप्स वगैरह के लिए सूटेबल है। तो आपको पूछ सकते हैं कि विच मेथड इज सूटेबल, विच मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेफ्यूज इज सूटेबल फॉर स्मॉल कैंप्स। एंड ये जो इनका मेजरमेंट है 1 to 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप, ये आपको लर्न करना है। द लास्ट इज सॉर्टिंग। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ स्टोरिंग रिफ्यूजेज इन 3 parts फॉर ईजी डिस्पोजल। अब इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको किसी फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है एक यूजफुल चीज़ के लिए, जैसे कि ब्रिक्स। इसमें जो भी सिंडर्स एंड पीसेस ऑफ कोल है उनसे ब्रिक्स बनाती जाती है। ओके, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को कुछ यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। Softcore means animal and vegetable organic matter is used as manure. उसका manure बना दिया जाता है in manure pits. Then hardcore, broken bottles and crockery is used for metaling of roads. तो जो broken bottles and crockery है उनसे रोड बनाते हैं। तो ये sorting के 3 types थे, सब टाइप्स, ब्रीज, सॉफ्टकोर एंड हार्डकोर। तो अब तक हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिफ्यूज़ क्या होते हैं, फिर सोर्सेस ऑफ रिफ्यूज़ क्या होते हैं, उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिफ्यूज़, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ इन द सेंस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट कैसे होता है। अब तक हमने रिफ्यूज़ या डोमेस्टिक वेस्ट का पढ़ा, अभी हम ह्यूमन वेस्ट का पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। Proper disposal of human night soil excreta are very essential for prevention of communicable diseases and also to prevent pollution, contamination of soil, water or food through flies. तो ह्यूमन वेस्ट में बेसिकली एक्सक्रीटा एंड फीसेस, यूरिन, ये सब आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए ताकि उससे कोई कम्युनिकेबल डिसीजेस ना हो किसी को भी, क्योंकि फ्लाइज के थ्रू बहुत सारी डिसीजेस, वो कंटामिनेशन हो सकता है सॉइल का, वाटर का, फूड का। So various methods are available for disposal of human waste or excreta as per the types of area. Area with a proper sewage system, sewered areas, and area without proper sewage system, that is unsewered areas. जहाँ भी सीवेज सिस्टम है वो एक सीवर्ड एरियाज है, और जहाँ पे भी सीवेज सिस्टम नहीं है, हमारे घरों में सीवेज सिस्टम होता है, बट अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर वहाँ अनसीवर्ड एरियाज होंगे। जैसे पहले के टाइम पे से ओपन लैंड्स होती थी, तो वैसे unsewered areas. और latrines used in such areas are mainly the flush latrines. It implies that ample supply of water is available to flush the night soil away. It is simple and hygienic. Then unsewered areas. There are of various types latrines for such areas. First is domestic latrines. These are those latrines which are used in houses in areas not having a sewage system. तो जिन घरों में सीवेज सिस्टम नहीं है वो डोमेस्टिक लैट्रिन्स का यूज़ करते हैं। उसके भी कुछ सब टाइप्स हैं। ओके, सबसे पहला बोरहोल लैट्रिन, डगवेल लैट्रिन एंड थर्ड इज वाटर सील लैट्रिन। बोरहोल लैट्रिन, द लैट्रिन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर। आपको ये जो भी यहाँ पे डायमीटर और इन्होंने डेप्थ वगैरह दी है वो आपको सबकी लर्न करनी पड़ेगी, तो ये आपको याद करना है। बस डिफरेंस यहाँ पे इनके साइज का है, डायमीटर, डेप्थ, तो ये सब तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा।
Water seal latrine performs two important functions, that is, it prevents access to flies and it prevents escape of foul odor. Out of many designs of water seal latrines, the RCA type is widely developed. Camp latrines. These are of following types: deep trench latrines, shallow trench latrines, and urinals. We'll see one by one. डीप ट्रेंच लैट्रिन्स, अ पिट 3 feet वाइड. ये सब में जितने भी टाइप ऑफ लैट्रिन्स है सब में दिया है इनका विड्थ, डेप्थ एंड उनका डायमीटर वगैरह, वो सब के आपको बिल्कुल लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट. 8 feet deep and of length suitable of requirement is constructed and wooden seats placed with it proper partitions and curtains. तो ये कैंप में जो यूज़ होते हैं लैट्रिन्स उनके बारे में डिफाइन किया है कि डीप ट्रेंच लैट्रिन्स होते हैं. डीप मतलब जो ज़्यादा गहरे हैं, अब ये ज़्यादा दिन के लिए होते हैं. ओके व्हेन जब स्टे बहुत ज़्यादा दिन का है तब डीप ट्रेंच लैट्रिन्स बनाते हैं. अदरवाइज जिनका 1 week से ड्यूरेशन कम है वहाँ पे शैलो ट्रेंच लैट्रिन्स, मतलब जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है. For camps of less than a week's duration, dig a row of trenches in parallel, each trench 3 feet long, 1 foot wide and 2 feet deep. And each trench should be 2 feet apart. 5 for the first 100 users. And ये थोड़ा आपको डेप्थ में मतलब पढ़ना पड़ेगा, ये जो नंबर्स हैं थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट जब आप 10-15 बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे अपने आप. The most common urinal used for camps is funnel urinals, which are constructed over a simple soakage pit. Okay. अब soakage pits क्या होते हैं? These are essential for the disposal of liquid refuse like greasy water from kitchen and wastewater from bathrooms. Dig a pit 4 feet by 4 feet and 5 feet to 6 feet deep. ये थोड़ा complicated है कि एक dig करना है आपको गड्ढा, एक pit dig करना है 4 feet by 4 feet का 5 to 6 feet deep. उसमें स्मॉल स्टोन्स या ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह डालना है, फिर उसमें एक ऑयल सैकिंग डालना है, फिर उसके बाद वहाँ पे मिट्टी डालनी है, एंड देन एम्प्टी टिन ऑफ केरोसिन ऑयल. और सोकेज पिट्स में क्या डालते हैं? लिक्विड रिफ्यूज़ होता है, जो भी किचन से लिक्विड रिफ्यूज़ आता है या बाथरूम्स में से जो भी वेस्ट वाटर आता है तो वो सब सोकेज पिट्स में जाता है. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड रिफ्यूज़ लाइक किचन गार्बेज, बोन्स एक्सेट्रा बी डन बाय बरियल और बर्निंग. The household refuse should be deposited in a covered bin placed outside. Improvised kerosene oil tins are not advisable. Further disposal should be done under municipal arrangements. तो जो हमारे घर का जो भी disposal of garbage होता है उसको कैसे करना है उसके लिए बताया है. It is easily understandable, इतना समझाने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर. Next is disposal of sewage. Proper disposal and treatment of sewage has assumed great importance today. तो जो भी हमने सीवेज सिस्टम पढ़ा, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो सीवेज होता है उसका डिस्पोजल कैसे होता है, तो इट इज़ डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टुडे. डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट एज वेल एज डिस्पोजल एज अंडर. तो जो भी सीवेज होता है उसको पहले ट्रीटमेंट होता है सीवेज का, उसको पहले फिल्टर्ड किया जाता है कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, एंड आफ्टर दैट उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. तो ये कुछ मेथड्स हैं ट्रीटमेंट की. स्क्रीनिंग, चेम्बरिंग, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज डिस्पोजल, स्लज डाइजेशन, डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट. तो इसको मैंने कैसे याद रखा था? SCPT सैड. इसका मतलब है कि स्कूल, SC मतलब स्कूल, कि स्कूल में जब PT कराते हैं तो बच्चे सैड हो जाते हैं. ऐसी कुछ भी वेग सा बना के आप याद रख सकते हो. Disposal of sewage. The sewage is collected by water carriage system and where no treatment facilities available can be disposed of by sea outfall, river outfall और land treatment. तो जो भी सीवेज होता है वो एक वाटर कैरियज सिस्टम के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, गटर्स के थ्रू आता है. ओके एंड जहाँ कोई भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो या तो वो डायरेक्टली उसको ड्रेन्ड ऑफ किया जाता है सी में, जो भी सी है पास में, कोई कोस्टल सिटी है या कोई कोस्टल टाउन है जो सी के कोस्ट पे है तो जनरली उनको कोस्ट में सी में जनरली उनको ड्रेन ऑफ किया जाता है. या तो फिर अगर कोई रिवर के अराउंड कोई सिटी है तो या तो उसको रिवर्स में किया जाता है. अदरवाइज कोई लैंड ट्रीटमेंट, मतलब वेयर द सीवेज इज अलाउड टू ड्रेन आउट ऑन द ईओमार्क्ड लैंड पिट्स, कि अगर लैंड पे ओपनली उसको ड्रेन आउट करने दे रहे हैं. इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल टू स्मॉल विलेजेस. एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन पॉन्ड, कि किसी पॉन्ड में उसको ड्रेन ऑफ कर रहे हैं. This was all about our second part.